Hello all, welcome back to my YouTube channel Biotech Shorts. So today in this video we'll be discussing about BLAST, that is Basic Local Alignment Search Tool, that is governed by National Center for Biotechnology Information NCBI under NIH. So BLAST is a search tool in which you can check or find the similarity between two or more sequences, or I would say two or more biological sequences. It can be the gene sequence or the protein sequence. So depending on that only, there are few BLAST suites, that is nucleotide BLAST. It compares two or more nucleotide sequences. There is protein BLAST that compares two or more protein sequences. There is BLAST X and this is tBLAST-N. So I'll be focusing more upon BLAST-N and BLAST-P. So let's have a look on the main page of the BLAST-N. So here's the main page of the BLAST-N. So here you can see the enter query sequence option. You can see the blank box here. So query sequence वो sequence होती है या वो target sequence होती है जिसकी हमें similarity check करनी होती है, या that is the sequence that can be compared with other sequences. So here you can enter the its accession number, that's the unique ID number of that particular sequence. Here you can copy paste the FASTA sequence, or you can either upload the FASTA sequence file. So here I have the insulin gene sequence of Homo sapiens. So here I have copy paste here. Now there is another option, align two or more sequences. So ये ऑप्शन आपको तब यूज़ करना होता है जब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यदि मुझे होमो सेपियंस के इंसुलिन जीन को कंपेयर करना है पिग या माउस की इंसुलिन जीन के साथ, देन आई विल बी सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन. सो फिर आपको पिग या माउस की जो आपका फास्टा सीक्वेंस है वो आपको वहाँ पर एक और ऐसा बॉक्स वहाँ पर विजिबल होता है, एंड देन यू कैन कॉपी पेस्ट दैट सीक्वेंस एंड देन यू कैन कंपेयर. But here I have to compare this target sequence with other sequences other than pig or mouse. So I'm not selecting this align two or more sequence option. So यहाँ पर आपका choose search set का option आता है जहाँ पर आप standard database को select कर सकते हैं, and by default आपका nucleotide collection आ गया है क्योंकि nucleotide sequence है. Now coming to the program selection. So यहाँ पर आपके पास तीन options होते हैं. Either you can select the somewhat similar sequence, or you can select the more dissimilar sequence, that is known as discontiguous megablast. तो more dissimilar sequence में वो sequence आती है जो कि least similarity show करती है with your target sequence. और यहाँ पर megablast में highly similar sequence आता है, यानी कि वो sequences आएगी जो कि बहुत closely related होगी to your target sequence. So here I am selecting this highly similar sequence option. So here I am selecting show results in a new window so that मैं जो results हैं वो new window में देख सकती हूँ. Then I am clicking to the blast option. So यहाँ पर आपके पास a long list of sequences आएंगी. So here is the long list of 9 sequences. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शन से लाइक आपके पास टोटल स्कोर आ गया, क्वेरी कवर. तो क्वेरी कवर और पर्सन आइडेंटिटी क्या होती है पहले आपको ये समझना होगा. क्वेरी कवर होता है कि हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ बेसेस आर मैच्ड विद योर टारगेट सीक्वेंस. लाइक फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी द 100%. इट मीन्स देयर इज ऑल द बेसेस मैच्ड विद योर टारगेट और क्वेरी सीक्वेंस. यहाँ पर हम पर्सन आइडेंटिटी की बात करते हैं. सो पर्सन आइडेंटिटी एंड क्वेरी कवर इज़ नॉट वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेरी कवर यहाँ पर 100% है, पर यहाँ पर पर्सन आइडेंटिटी आपकी 99.72%, यानी देयर इज समथिंग वेरिएबल इन दिस सीक्वेंस. सो पर्सन आइडेंटिटी हम बोल सकते हैं सिमिलैरिटी परसेंटेज है. सो यहाँ पर यदि मैं और नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेरी कवर सिर्फ 22% है, बट जो आपकी पर्सन आइडेंटिटी है वो 99% है. सो देयर माइट बी द चांसेस कि कुछ मिसमैच हो या गैप्स हो. सो डेट वी हैव टू फाइंड हियर. यहाँ पर आपका accession नंबर दे रखा है जिसके थ्रू आप ये सीक्वेंस आप रिट्राइव कर सकते हैं. ये आपकी लेंथ है. सो दिस इज़ द लेंथ, लाइक इट हैज़ 39,000 अप्रॉक्स बेसेस इन द सीक्वेंस. सो यदि मैं इस सीक्वेंस पे आप क्लिक करती हूँ तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है
वो ये आता है. सो देयर विल बी द लॉन्ग रेंज ऑफ सीक्वेंसेस. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल में कि 100% आइडेंटिटी है, यानी कि यदि मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी गैप और मिसमैच नहीं है. तो डेट्स वाई इट्स शोइंग कि गैप 0% है. यहाँ आपकी लेंथ शो कर रहा है. क्वेरी का मतलब होता है कि ये आपके टारगेट सीक्वेंस के बेसिस है, और यहाँ सब्जेक्ट वाला है कि जो नीचे वाला है वो आप जिससे कंपेयर कर रहे हो, लाइक ये वाली जो आपकी सीक्वेंस है उसके बेसिस है. सो दिस इज़ द रिज़ल्ट. यदि मैं आपको एक और रिज़ल्ट शो करूँ इसमें, तो यहाँ पर ये आपका एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पर गैप्स 0% है, बट यहाँ पर्सन आइडेंटिटी 97%, यानी कि देयर इज सम रीज़न बिहाइंड इट. और रीज़न ये है कि यहाँ पर मिसमैच हो रहा है. लाइक यहाँ पर होना चाहिए था कि सी के साथ मैच होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर सी ए के साथ मैच हो रहा है, यानी इट मीन्स यहाँ पर मिसमैच है. और इसी मिसमैच की वजह से जो पर्सन आइडेंटिटी है इट हैज़ बीन लोअर टू 97%. सो यहाँ पर ये आप ये भी देख सकते हैं. सेकेंड थिंग जो एक और आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, ग्राफिक समरी की मिलती है. सो हियर वी कैन सी द ऑप्शन ऑफ ग्राफिक समरी. तो ग्राफिक समरी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है कि जो आप ऊपर की लगभग 5 से 6 लाइंस रेड कलर की लाइंस देख रहे हैं, कंप्लीट रेड कलर की लाइंस देख रहे हैं. इट मीन्स इट इज़ शोइंग दैट द अबव सीक्वेंसेस आर हाईली सिमिलर टू योर टारगेट सीक्वेंस. एंड जो लोअर सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गैप्स हैं, यानी कि देयर मे बी द चांसेस कि मिसमैच और गैप्स की वजह से ये डिसिमिलर सीक्वेंस है रादर देन अबव वन. सो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है. एंड हेयर यू कैन ऑल्सो गेट द टेक्सोनॉमिकल डिटेल्स ऑफ द सीक्वेंसेस. सो यदि सो डेट्स ऑल अबाउट द ब्लास्ट एन. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द ब्लास्ट पी, सो ब्लास्ट पी में हमारे पास क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया है कि ब्लास्ट पी में भी ऑप्शन आता है एंटर क्वेरी सीक्वेंस का. तो यहाँ पर आप किसी भी अमीनो एसिड सीक्वेंस को डाल सकते हो. तो यहाँ पर मैंने होमो सेपियंस की केराटिन प्रोटीन की अमीनो एसिड सीक्वेंस डाली है. यहाँ पर भी मैंने आइडेंटिफाई लाइन को कॉपी पेस्ट किया है. सो डोंट फॉरगेट टू कॉपी पेस्ट दिस आइडेंटिफाई लाइन. सो यहाँ पर भी हम चूज़ फाइल का ऑप्शन ले सकते हैं. यहाँ पर भी अलाइन टू और मोर सीक्वेंस का होता है. सो इट्स जस्ट सेम एज ब्लास्ट एन. देन हमारे पास बट प्रोग्राम सिलेक्शन का वेरिएशन आता है. सो प्रोग्राम सिलेक्शन की बात करें यदि हम, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हैं. लाइक हम प्रोटीन ब्लास्ट भी कर सकते हैं. तो आई विल बी सिलेक्टिंग प्रोटीन ब्लास्ट. देयर अनदर ऑप्शन लाइक एक्सेलरेटेड प्रोटीन ब्लास्ट, पोजीशन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक पोजीशन में आपको ब्लास्ट कराना है, उसका अलाइनमेंट चेक करना है. सो यू कैन सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट. सो यदि मैं इसको ब्लास्ट करती हूँ तो हमारे पास लाइक इसका रिज़ल्ट आएगा एंड इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो रिज़ल्ट जो होगा वो भी इसके तरह सिमिलर होगा कि हमें भी सीक्वेंस पता चल जाएगा कि केराटिन प्रोटीन किन किन प्रोटीन के साथ मैच कर रहा है. सो द मेन पर्पस ऑफ माई वीडियो वॉज टू टेल यू अबाउट कि हाउ to use the blast to check the alignment, to check the similarity between various sequences. तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जीन किस ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोजली रिलेटेड है, एंड आप उसका इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट भी समझ सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड thanks for watching. And if you like my video, then please subscribe and share in your network. And if you have any queries related to the blast, so you can drop your queries in the comment section below. Thank you.